Hi guys, welcome back to my channel. My name is Radhika and in this video I'm going to solve another problem of LeetCode May challenge. So let's get into the video. So this is the day 12th challenge of May LeetCode challenge. So let me quickly read out the question to you. So there is a 2D matrix which is given to us and we have to calculate the sum of elements of matrix inside a particular region. So we are given the two sets of coordinates and whatever region it covers, we have to return the sum for that. So if for example one is 2143, so 2143 is second row and first column, which is basically this cell, and 43 which is basically this cell. So the region which is covered by these two coordinates will be our region for which we have to return the sum. Okay, so जैसे कि यहाँ पे ये red box है, वैसे green box 1122 दिया हुआ है, so we have to return that. Brute force approach will be obviously every time there is a region request, like a sum request, we will just iterate over the entire region and we will add everything and return the sum. Okay. So this is a brute force approach. We can optimize our solution so that we can just send the sum in O of one time with some computation. We have to pre-compute the sums so that we can send the sum when required in very less time. Okay, so before start moving on to like this solution, let me explain you a simpler problems solution, which is if a 1D array is given, for example 2 3 5 6 and 7 8, suppose something like this, and I'll tell you that give me the sum for a range that I specify. For example, I say give you a range of 1 comma 4. That means we have to give me the sum for this range, right? So instead of like looping over this entire range and finding the sum, what I can do is I can just store the sum in an auxiliary array till ith index, right? So like in my auxiliary array, the first at first index 2 will be stored, and the second index my sum of first index and second index will be stored, that will be 5. Next will be 10, next will be 16, next will be 23, next will be 31, right? So like this the elements in the auxiliary array will be stored, and जब भी हमें एक range का request आएगा like 1,4, so we know that if we go to index number 4, which is this one, we will get the sum till index number 4, right? But what we need to do is we need to find it from index 1. So what we'll simply do, हम index 1 के पहले तक का जितना भी sum था वो subtract कर देंगे, which I'll get from index of 1 minus 1, so that is 0. So I'll just do 23 minus 2, which will be 21. So that is a required answer. So the sum for this region will be 21. Now we are going to apply the exact same concept to this 2D matrix. I will be following the approach where we like store these sums for the entire blocks. So for example, if you come here to this cell, this will store the value like sum for this entire region. If you come to this block, so this will store the value for this entire region. ओके, सो अगर आप ये सेल देखो तो इस सेल में ये पूरा रीजन का वैल्यू स्टोर्ड होगा. आई शो यू प्रोग्रामेटिकली हाउ वी कैन डू दैट. अभी आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट और द लॉजिक दैट आई विल बी यूजिंग. सो अब हमारे पास अगर ये पूरा रो का वैल्यू है, सो एंड वी वांट ओनली फॉर दिस रीजन ऑफ कोर्स, देन हाउ विल डू दैट. तो ऑफकोर्स ये वैल्यू, यहाँ की वैल्यू तो हमारे पास होगी ही. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सब्सट्रैक्ट इतना पार्ट फ्रॉम योर, राइट? ये एक्स्ट्रा चीज एडेड है हमारे इस चीज यहाँ तक के सोल्यूशन में. जो हमने ऑक्सिलरी एरे बनाया है, मैट्रिक्स बनाया है, उसमें ये वाला जो सेल है दैट रिप्रेजेंट्स दिस इंटायर सम, राइट? सो इफ यू कैन जस्ट सब्सट्रैक्ट दिस ऑल दिस पार्ट, ये एक्स्ट्रा पार्ट अगर हम सब्सट्रैक्ट कर पाए तो दैट विल बी एनफ, गुड एनफ, राइट? सो हाउ वी आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट दैट? तो वो सब्सट्रैक्ट करने के लिए वी कैन just subtract this column because this cell has the value for this entire row, and we can subtract this cell because this cell has the value for this entire column, right? So we will be able to get rid of this extra area, but also we have to keep in mind that this element is getting subtracted twice, so we have to add this back.
once again. Okay, so that is about अगर एक नॉर्मल ये रीजन हुआ, उसी तरीके से अगर हमारा मान लो कि यहाँ से कोई रीजन आया है, सपोज 0 0 से कोई रीजन है 0 0 से यहाँ तक, so then we can simply just return this value. Okay, so let's just go ahead. As discussed, we will need an auxiliary vector, I mean matrix वेक्टर ले रहे हैं हम, इसका नाम दे देते हैं dp. Now we have to just initial like give it some size is dp का, तो वो साइज, अच्छा पहले ये साइज को निकाल लेते हैं. int m is my number of rows which will be matrix dot size, and int n is equal to matrix 0 dot size. तो number of columns, number of rows हमने निकाल लिया, and the size of my dp will be यही जो हमारा rows है vectors का value है. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, सबसे पहले तो dp ऑफ 0 0 इनिशियलाइज कर देते हैं मैट्रिक्स ऑफ 0 0 से. ओके, नाउ अब आप देखो हमें क्या करना है. जस्ट टू स्टार्ट विथ, हम सबसे पहले पहला रो और पहला कॉलम अलग से एक लूप में भर लेंगे, आई मीन इनिशियलाइज कर लेंगे इनका वैल्यूज. उसके बाद वी विल जस्ट लूप फ्रॉम दिस 1 1 ताकि हम उसके बाद पूरा आगे का टेबल भर सकें. ठीक है, सो यहाँ पे पहला रो के लिए int I इज इक्वल टू 0, सॉरी दिस इज फॉर फर्स्ट कॉलम, रो तक हम कर रहे हैं, सारे रो तक m तक. सो व्हाट वी हैव टू डू इज dp ऑफ I 0, सॉरी dp ऑफ I 0 विल बी इक्वल टू dp ऑफ I माइनस 1 0 प्लस मैट्रिक्स ऑफ I 0. ठीक है, तो पहला रो सॉरी पहला कॉलम हमने ऐसे पूरा भर लिया. सेम हमें करना है पहला रो के लिए. सो नाउ आई हैव टू रन इट टू जितना कॉलम्स है उतना तक, एंड पहले रो को हम भर लेंगे. सो दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी I माइनस 1 एंड दिस विल बी I एंड दिस विल बी 0. सो आफ्टर दिस हमारा पहला रो और पहला कॉलम भर जाएगा. उसके बाद हमें जस्ट नॉर्मल लूप, 2 लूप चलाने हैं टू फिल माई एंटायर मैट्रिक्स आगे का. ठीक है, I प्लस प्लस फॉर int j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस. हाँ, अब हमें यहाँ पे सोचना है कि ये कैसे होएगा. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये सेल का बात करें तो हाउ वी कैन फिल दिस सेल, वी कैन जस्ट ऐड दिस एंड दिस, मतलब एक रो ऊपर से और एक कॉलम बगल से वी कैन ऐड दोज वैल्यूज एंड वी हैव टू देन सब्सट्रैक्ट दिस. क्योंकि आप सोचो कि जब हम ये और ये ऐड करें दैट मीन्स वी आर एडिंग दिस प्लस दिस, राइट. तो ये जो 3 है ये 2 बार ऐड हो जा रहा है, तो इसलिए एक बार हमें इसे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो ये छोटा सेल है. उसी तरह अगर हम बड़ा सेल कुछ सोचें, ये अगर 1 ये वाला अगर सेल हमें फिल करना है तो फिर वी कैन जस्ट ऐड दिस एंड वी कैन जस्ट सब्सट्रैक्ट दिस, क्योंकि ये रीजन 2 बार ऐड हो जाएगा यहाँ तक जो रीजन का वैल्यू है, राइट. ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये रीजन का वैल्यू, सो दिस विल बी गेटिंग एडेड 2 टाइम्स जब हम लोग ये और ये दोनों ऐड कर रहे हैं. तो विल जस्ट सब्सट्रैक्ट दिस वन. So I and j, dp of ij will be dp of I minus 1 j plus dp of I j minus 1, and we will be subtracting एक डायगोनल एलिमेंट क्योंकि वो 2 बार ऐड हो जा रहा है, राइट. यहाँ पे हमें मैट्रिक्स भी ऐड करना है, आई जे मतलब जो करंट एलिमेंट है उसको तो ऐड करना ही पड़ेगा, राइट. सो आफ्टर दिस मेरा पूरा जो डीपी है वो पॉपुलेट हो जाएगा, ऑक्सिलरी मैट्रिक्स हमारा रेडी हो जाएगा. नाउ इसके बाद वी जस्ट हैव टू रिटर्न द सम ऑफ द रीजन. ठीक है, तो वो कैसे करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस हैं. इफ हमारा जो रो 1 इज इक्वल टू 0 एंड कॉलम 1 इज इक्वल टू 0, अगर ये होगा तो वी कैन जस्ट सिंपली रिटर्न माय डीपी ऑफ रो 2 एंड कॉलम 2. नेक्स्ट हमें क्या सोचना है, एल्स इफ अगर मेरा सिर्फ एक चीज मान लो सिर्फ रो इज इक्वल टू 0 है एंड कॉलम 1 इज ग्रेटर देन 0, अगर ऐसा है तब क्या करना होगा हमें, मतलब हमें 0th रो से ही बोलना है, लेकिन कॉलम आगे का मान लो इस सेल से, इस कॉलम से हमें कहीं तक कभी यहाँ तक का सम बताना है. ये पूरा का सम अगर हम ले रहे हैं तो दिस एलिमेंट विल टेल अस द सम ऑफ द एंटायर थिंग, बट विल हैव टू सब्सट्रैक्ट दिस रीजन, राइट. एंड दिस रीजन का वैल्यू कहाँ पे स्टोर्ड है, इस वाले एलिमेंट में. सो वी कैन जस्ट से रिटर्न
dp of row 2 column 2 minus dp of row 2 and column 1 minus 1, right? अगर सेम सिचुएशन, अगर एल्स इफ मेरा रो 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड कॉलम 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा? विल जस्ट रिटर्न दिस माइनस, we'll have to subtract what? dp of रो 1 माइनस 1, एक ऊपर का रो एंड कॉलम 2, राइट? लास्ट अगर ये कुछ भी नहीं है, मतलब मेरा कहीं बीच का ही कोऑर्डिनेट्स है, मतलब मान लो ये रेड बॉक्स, ठीक है, ये बीच का ही कोई है ना, स्टार्टिंग का रो है ना स्टार्टिंग का कॉलम है, कुछ भी नहीं है, सब बीच का है. सो देन इन दैट केस व्हाट वी विल हैव टू डू, विल हैव टू सब्सट्रैक्ट द रिमेनिंग रीजन. दिस इज गोइंग टू बी दिस माइनस हमने जो इन दोनों में लिखा, ठीक है, वी आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट कॉलम 1 माइनस 1, लेफ्ट साइड का पूरा पार्ट, माइनस वी आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट ऊपर का पूरा रीजन, ठीक है, ऊपर का पूरा रीजन हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, प्लस विल जस्ट हैव टू ऐड द एक रीजन जो 2 बार सब्सट्रैक्ट हो चुका है, दैट इज रो 1 माइनस 1 एंड कॉलम 1 माइनस 1. ओके, सो या, सो इससे हमारा कंप्यूटेशन O1 O ऑफ 1 टाइम का हो गया. बस हमें जैसे ही हमें कॉस्ट, जैसे ही हमें मांगेंगे कोई भी रीजन, वी आर जस्ट गोइंग टू डू सम एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड रिटर्न द वैल्यू. हमें सिर्फ एक बार कंप्यूटेशन करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा जब हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं इस मैट्रिक्स को, लाइक ऑक्सिलरी मैट्रिक्स को. लेट्स जस्ट रन दिस कोड. ओके, माई बैड, दिस वी हैव टू डू फ्रॉम 1. पहला तो हमने भर दिया है ना, इसीलिए वो I माइनस 1 कर रहा था, तो हमारा एड्रेस गलत आ रहा था. ओके, लेट्स जस्ट रन इट नाउ. आई होप अभी ये गलत ना हो. ओके, लेट्स जस्ट सबमिट इट. Okay, so that's it for this video. I hope you enjoyed it. I hope you liked it. I'll be doing more videos on May Lead Code Challenge because these questions are really interesting and I really enjoy solving them. So that is why I'm just sharing these problems with you as well. Do let me know in the comments down below, how are you liking these videos? Is the explanation good enough? Do you want me to do something else? I will be back with another video very soon. Till then, bye-bye.